Dear students, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਤਰਨਦੀਪ ਜੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਗਿਆਨ ਜੋਤੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੜਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਹੋਪ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਤਰਨਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। Thank you, sir. Thank you so much. Yes, good morning, everyone. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਆਨ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਬੱਚੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ। Sure, sir. Sure. Yes. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। Yes, good morning, everyone. So, as sir has introduced me, so I'll give you the information a little bit about managing data on Oracle. So, थोड़ा ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਓਵਰਆਲ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਐਜ਼ ਅ ਡੇਟਾਬੇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ। ਸੋ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ ਸਰ, ਵੈਨਸਡੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਓਰੇਕਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ RDBMS ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਓਰੇਕਲ, ਮਾਈਸੀਕੁਅਲ, ਸੀਕੁਅਲ, ਇਨਫੋਮਿਕਸ, ਟੇਰਾਡੇਟਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ RDBMS ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮਾਂਡਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਕੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਟੋਟਲੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਕੰਸੈਪਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 11 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਚਾਹੋ ਕਿ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਦ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ giving me this opportunity, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰਿਤ ਸਿੰਘ ਸਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Shall I start? Okay sir, thank you. Right, thank you sir. So I have original material from Oracle Corporation. ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਮਿਟਿਡ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਨਸੈਪਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ let me share my screen. That's great. Okay, sir, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes sir. जी सर, हाँ जी। Right. So for managing database, we must understand the task of a database administrator. Now, database administrator is the key person and a main person which manages the data. अगर किसी प्रोग्रामर की गल करो तो प्रोग्रामर सिर्फ इतना काम करेगा, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, या रिपोर्ट दे देगा जिहड़ी तुसीं एडवांस क्वेरीज दे अंदर सीख के आ रहे हो। लेकिन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम की है? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लान एंड क्रिएट अ डेटाबेस, मैनेज डेटाबेस अवेलेबिलिटी, manage physical and logical structure, manage storage based on design and security. Now, plan and a creation of a database means not only the installation. ये सिर्फ इतना काम नहीं है कि तुसी एक CD या पेन ड्राइव लगाई ते Oracle इंस्टॉल कर देती, नहीं। डेटाबेस अलग अलग तरह से क्रिएट किया जा सकता है और Oracle दे अंदर असी एक सिस्टम दे अंदर मल्टीपल डेटाबेसेस इंस्टॉल कर सकते हैं, उन्होंने स्टार्ट ते स्टॉप कर सकते हैं। ज़्यादातर असीं ये देखिया मशीन ऑन करो तो डेटाबेस साडा चल रहा है जी, सिर्फ सानू इन्ना पता होंदा है, साडा यूजर होंदा है जी स्कॉट, पासवर्ड होंदा टाइगर, उहदे विच काम कर रहे हैं असीं।
और अगर थोड़ी जी प्रॉब्लम हो जाए, टेबल डिलीट हो जाए या कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, सानू ऐ लगता है डेटाबेस खराब हो गया। ठीक है, सो एवें दा कंसैप्ट नहीं है। अज मैं तुहानू सारी चीज़ां इस जगह ते कराउण दी कोशिश करांगा जिहदे विच तुहानू लगदा है कि डेटाबेस खराब हो गया, तुसीं दोबारा इंस्टॉल कर लिया, एवें दा नहीं है। ओरेकल उसी जगह पे खराब नहीं होती जब तक तुहाडा हार्डवेयर खराब ना हो जाए या फिर कोई सॉफ्टवेयर इंटरप्ट या हार्डवेयर इंटरप्ट ना आ जाए या मशीन दे विच कोई वायरस ना आ जाए। फाइन। नाउ मैनेज द डेटाबेस अवेलेबिलिटी। डेटाबेस अवेलेबिलिटी मीन्स तुहाडा डेटाबेस हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, राइट? सो I'm here to tell you about like managing a physical logical structures. There are multiple things in which you have to manage physical structure of the database. Then storage. This is the quite practical concept. We don't even know where the data is actually residing. सानू ये भी नहीं पता होंदा कि डेटा किस जगह ते पिया है, हार्ड ड्राइव दी केड़ी जगह ते साडा डेटा पिया है। Then the security. Scott एक यूजर है जिहदा पासवर्ड असीं कहंदे हैं टाइगर है जी, उहदा पासवर्ड हुणी लॉगिन करांगे तो उन्होंने इहदी सिक्योरिटी भी मैनेज करना सिखाऊंगा। Then these three concepts: network administration, backup and recovery, and database tuning. ये तीन कंसेप्ट के विचों सिर्फ एक कंसेप्ट मैं तुहानू करा सकांगा बैकअप एंड रिकवरी दा एक छोटा जिहा पॉइंट है, दैट इज नोन एज एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग। सर मैनू लगता स्क्रीन तो दोबारा शेयर करनी पैनी थी, राइट किसी सर, स्टूडेंट ने मैंने स्क्रीन शेयर कर ली थी, फिर मैं लगा तां डिस्टर्ब हो गई। ओके, कोई नहीं सर, मैं हुणी देख लेना। Sir, screen already share. Let me stop it. Okay. नहीं सर, वो ना ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਾਓ, ਉਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਜੀ ਵਾਰ ਸਰ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ सर ਤੇ स्टूडेंट ਦੁਬਾਰਾ share- ठीक सर, ठीक सर, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਗਰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਰੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਕਰੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟ ਸਰ, ਆ ਗਈ ਸਰ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ? ਬਿਲकुल सर, बिल्कुल, थैंक यू जी। थैंक यू सर। Okay, just so first of all, I'll let you know how to start a database. Database शुरू कितना होता है ते shut down कितना किया जा सकता है। I'm coming towards a page number 111. There are so many things. This is the original material from Oracle Corporation. And if I'm going to teach you this complete database, it took me around 3 months to complete this course. So first of all, I'll let you know how to shut down a database. एक database shut down होता है तो की होता है उस जगह पे। Okay, so practically भी थोड़ा जा देख लेंगे हम। सर ये दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पे? जी सर, नजर आ रहा है जी। Okay, so जिस तरह तुसी देख सकते हो, this is DOS prompt, command prompt है। So command prompt ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ Oracle ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Even ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ SQL Plus ਤੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ Scott, ਪਾਸਵਰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ Tiger। There you go. Let me check. Plus. Here it comes. So
ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ SQL Plus ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ DOS prompt ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक है जी। Now look at the concept। इस जगह ते concept देखो, मैं सेशन बंद कर देना इस जगह ते। So इस जगह ते देखो ਅਸੀਂ लॉगिन किया है, अगेन ਤੁਹਾਨੂੰ मैं एग्जिट करा देना। DOS prompt तो अगर कभी भी लॉगिन करना है, ठीक है जी। सो ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ SQL PLUS। अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ਦੇ यूजर नेम पासवर्ड है, जिस तरह मैं इत्थे कहना sys पासवर्ड मेरा हैगा DBA, हमेशा लॉगिन करते हुए ਤੁਸੀਂ लिखना है as sys DBA। ठीक है। इन केस अगर थोड़े डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने सिक्योरिटी नहीं लगाई हुई, SQL PLUS /as sys DBA अगर सिंपल ए लिख दोगे, एंटर करोगे, तुसी लॉगिन कर जाओगे। ओके। नाउ जिहड़ी चीज़ मैं तुहानूं सिखाना चाहना कि डेटाबेस नूं चलदे होए नूं स्टॉप किद्दां कीता जा सकदा है, शट डाउन किद्दां हुंदा है डेटाबेस ते स्टार्टअप किद्दां कीता जा सकदा है। हमेशा याद रखना इत्थे एक ऑप्शन हैगी है शट डाउन इमीडिएट ही शट डाउन किया जा सकता है, क्योंकि अगर सिंपल शट डाउन लिखोगे तो थोड़ा कमांड जी है हैंग कर जाएगी, डेटाबेस डाउन नहीं आएगा। जिस तरह इसी शट डाउन किया, कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे हैं। सो डेटाबेस सब तो पहले क्लोज होएगा, डेटाबेस डिसमाउंट होएगा, देन ओरेकल इंस्टेंस शट डाउन होएगा। तो इस जगह पे देखो, नाउ ड्यूरिंग द शट डाउन मॉडिफाइड बफर्स, अनकमिटेड डेटा, ये सारा का सारा सेव कर दिया जाएगा। ठीक है जी। ऑप्शन मैं यूज किए दैट्स अ शट डाउन इमीडिएट, जी तुम इत्थे देख रहे हो। शट डाउन नॉर्मल, शट डाउन ट्रांजैक्शनल भी किया जा सकता है, लेकिन तुसी शट डाउन इमीडिएट करोगे, क्योंकि अगर असी नॉर्मल या ट्रांजैक्शन ते जाते हैं तो डेटाबेस हैंग होने के चांसेस हैं। इमीडिएट दे विच सिंपल डेटाबेस नूं क्लोज करके शट डाउन कर देगा। Now coming towards starting the database. Now database जिस वक्त स्टार्टअप किया जाता है उहदे विच 4 पॉइंट्स आते हैं साडे कोल। फर्स्ट वी आर इन ए शट डाउन मोड, देन जिस तरह असी शट डाउन दे टाइम ते इंस्टांस नूं शट डाउन किया है, स्टॉप किया है, सब तो पहले इंस्टांस ओपन होएगा, देन डेटाबेस माउंट होएगा, देन ओपन करेगा। इहदे विच मैं तुहानूं एक बारी स्टार्टअप करना दिखा दांगा, देन नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप किस तरह स्टार्टअप होता है वो सारी चीजें मैं तुहानूं एक एक करके दिखावांगा। नाउ इंस्टांस स्टार्ट हो जाएगा, कंट्रोल फाइल्स ते दूसरी डेटा फाइल्स जिहड़ियां वो ओपन हो जाएंगी यूजर वास्ते। नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, इसनूं प्रैक्टिकली करांगे असीं थोड़ा जिहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल स्टार्टअप, एक बारी च असीं अगर डेटा स्टार्टअप करिए तो की होएगा। नाउ इंस्टांस स्टार्ट हो गया, देन डेटाबेस माउंट, एंड डेटाबेस ओपन हो गया। इस जगह पे अगर तुसी चाहो कनेक्ट स्कॉट टाइगर करके select star from tab, then select star from EMP, रिकॉर्ड आ जाएंगे,
select star from DEPT, again record आ जाएगा। ये काम तुसी कर सकते हो, ये तुसी रोज करते आए हो। Now मैं कनेक्ट करूंगा एज ए DBA। ਹੁਣ इस पॉइंट ते अगेन मैं इनू शट डाउन कर रहा हूं। Okay. So coming towards the first step, no mount, जिस सिर्फ इंस्टांस स्टार्ट होएगा। ये तो प्रैक्टिकल देख लेंगे हम। ऐसे स्टार्टअप नो माउंट, इस जगह ते सिर्फ इंस्टांस स्टार्ट हो गया। इंस्टांस के अंदर साढ़े कोल कुछ बफर्स हैं, वेरिएबल साइज, डेटाबेस बफर्स, रीडू बफर्स, ठीक है। ना इन्ना याद रख लो कि सब तो पहले एक तरह के रैम के उत्ते तुहाडा सॉफ्टवेयर चला गया। जिहड़ा भी तुहाडा सॉफ्टवेयर है ओरेकल के उत्ते जिहड़ा भी तुसीं डेटाबेस रखोगे, वो सब तो वड्डी गल हैगी है कि रैम दे विच सब तो पहले मैनेज हुंदा है। असीं ये देखते आ रहे हैं कि साडी वर्चुअल मैमरी ज़्यादा होंदी है, ठीक है। रैम असीं 4 GB 8 GB इस तरह रखना चाहते हैं। सो जिहड़ा भी इंस्टांस है वो सब तो पहले रैम के उत्ते काम करता है। जिहड़ा भी तुसीं इंसर्ट अपडेट डिलीट क्वेरी लिखते हो वो रैम के उत्ते जाती है, रिकॉर्ड्स उत्थे मॉडिफाई होंदे हैं, तो उस तो बाद वो जाके हार्ड डिस्क दे विच सेव होंदे हैं, ठीक है। तो एक तरीके नाल ये समझ लो कि तुहाडा ये रैम के उत्ते मैनेज हो गया, ये रैम के उत्ते स्टार्ट हो गया। लेकिन इस जगह के उत्ते कोई भी यूजर क्वेरी नहीं कर सकता। अगर मैं हुण इस जगह ते लिखां कनेक्ट स्कॉट टाइगर, एरर आ जाएगा। या तो ओरेकल इनिशियलाइजेशन प्रोसेस च है या शटडाउन प्रोसेस च है, मैं ओरेकल देना कनेक्शन ते नहीं कर सकता। सो इस पॉइंट ते मैंने दोबारा करना पड़ेगा। यस सर, ठीक है जी। सो एक चीज याद रखना, असी नो माउंट पोजीशन ते खड़े सी इस टाइम ते। हुण असी माउंट ते जावांगे, ऑल्टर डेटाबेस माउंट कमांड है साडी। असी इस जगह ते आ चुके हैं। ऑल्टर डेटाबेस माउंट किया, सेकंड स्टेप द थर्ड स्टेप ते गया, माउंट मोड ते आ गए। नो इस जगह ते कंट्रोल फाइल्स पढ़िया जांदियां। नो व्हाट इज अ कंट्रोल फाइल? कंट्रोल फाइल साडी एक तरह की डेटाबेस इंफॉर्मेशन फाइल है। फाइल एलोकेशन टेबल कह लो अगर हार्ड डिस्क पॉइंट ऑफ व्यू नाल देखना चाहते हो, ठीक है जी। तुसी ये कह सकते हो कि तुहाडे कोल एक एड्रैस हैगा या एक बुक का एक इंडेक्स है। अगर तुसी कोई चैप्टर, कोई पर्टिकुलर वर्ड या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो सब तो पहले असीं जांदे हां इंडेक्स दे कोल। इंडेक्स दे विच जाके देखते हैं कि ये पर्टिकुलर चैप्टर किहड़ी पेज ते हैगा। सो कंट्रोल फाइल इज अ काइंड ऑफ एन इंडेक्स और एड्रैस बुक जो डेटाबेस नूं स्टार्टिंग दे पॉइंट ते दसदी है कि उहदी डेटा फाइल्स किहड़ी जगह ते पईयां, डेटा किहड़ी जगह ते रिजाइड कर रहा है। एक बारी डेटाबेस नूं शट डाउन करता, रैम दे विचों चला गया, कुछ भी याद नहीं है। नैक्सट टाइम जिस को तुसीं उहनूं ओपन करोगे उहनूं कंट्रोल फाइल तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि उहदी पहली वर्किंग कंडीशन किहड़ी पोजीशन ते सीगी, हार्ड डिस्क दे विच किहड़ी जगह ते फाइल सीगियां। ये चीज़ां मैं तुहानूं हुणी शो करांगा कि ओरेकल दा डेटा किहड़ी जगह ते मेरे सिस्टम ते किहड़ी जगह ते पिया है। जिस वक्त तुसीं ओरेकल इंस्टॉल करके चलाओगे, जिस हार्ड डिस्क दे विच जिहड़ी ड्राइव दे विच करोगे, कमांड्स तुहानूं दस दांगा, तुसीं उत्थे जाके लोकेशन देख सकोगे। ईवन मैं तुहानूं हुणी कंट्रोल फाइल भी दिखावांगा, कंट्रोल फाइल कित्थे है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये जिहड़ी फाइल्स हैं इन्हां नूं तुसीं डबल क्लिक करके नोटपैड, वर्डपैड या किसी दे विच ओपन नहीं करना, क्योंकि अगर तुसीं इन्हां नूं ओपन करन दी कोशिश कीती ते हुण मैं कह सकदा कि ओरेकल खराब हो सकदी, डेटाबेस खराब हो सकदा है। ओरेकल नहीं, तुहाडा ओह वाला पर्टिकुलर डेटाबेस खराब हो सकदा है। तुहानूं रिकवरी दी लोड़ पेगी या फिर तुहानूं
डेटाबेस दोबारा क्रिएट करना पेगा, ओरेकल नहीं इंस्टॉल करनी पेगी, डेटाबेस दोबारा क्रिएट करना पेगा। ਉਹਦੀ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਓਪਨ ਮੋਡ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ऑल्टर डेटाबेस ओपन। सो डेटाबेस ऑल्टर हो गया। ਹੁਣ नॉर्मल वर्किंग कंडीशन ਅਸੀਂ स्कॉट टाइगर यूजर लॉगिन करके काम कर सकते हैं। नाउ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ मीनिंग ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ? क्वेश्चन sometimes arises, why do we need these kind of steps? Now understand, अगर कभी कोई क्रैश हो जाए, डेटाबेस ਦੀ कोई डेटा फाइल खराब हो जाए या कंट्रोल फाइल खराब हो जाए, ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਈਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 3 ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਈਲਸ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈਗੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, लेकिन ਅਸੀਂ 3 ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ ਚਲਾ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Now these are the steps for opening the database. Coming towards a point. ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਟੇਬਲ ਸਪੇਸਿਸ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡੇਟਾ ਰਿਜ਼ਾਈਡ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। DBA_data_files describe। Now ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਟਾ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਡੇਟਾ ਅਬਾਊਟ ਡੇਟਾ। डेटा डिक्शनरी ਅਸੀਂ पढ़ के चलते हैं, it's a kind of a dictionary which holds all the information about the data। लेकिन एग्जांपल्स किसी ਨੂੰ पता ਹੁੰਦੀਆਂ, ठीक है, या जिन्हें डेप्थ ਵਿੱਚ स्टडी ਕੀਤੀ है तो बहुत अच्छी एग्जांपल दे पाएगा ਤੁਹਾਨੂੰ। now this is one of the kind example of data dictionary। DBA_data_files ਇਹ स्कॉट यूजर ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ sysdba ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਗਾ? मैं कुछ कॉलम्स ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗਾ। select file name table space name from DBA_data_files। एंटर करते ही मेरे सामने कुछ ਐਵੇਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਣ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। Just give me a second, I have to manage certain things। सर एक मिनट सर थोड़ा सा होल्ड करना। थैंक यू वेरी मच। सर मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ जी, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮਾਂਡ ਲਿਖੀ ਹੈ select file name double pipe sign within single quotes there is a comma again double pipe sign। हमेशा याद रखना कि डबल पाइप साइन ओरेकल या किसी भी डेटाबेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਰੇਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਕੈਟੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ users system AUX undo
table space, system, example. Now these are the table spaces. जिस तरह एक बच्चा क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੇਅਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੇਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਬੁੱਕਸ ਉੱਥੇ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ Oracle database ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਸਪੇਸ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੇਬਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਸਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਿਲੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੇਬਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ ਸਕਾਟ ਹਜੇ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਟੇਬਲ ਸਪੇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਦਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, Oracle product 10.2.0 Ora data ORCL users 01.dbf. Now this is the file location. अगर यही फाइल लोकेशन मैं इत्थे एंटर करा, I'm coming towards Oracle product 10.2.0 Ora data ORC user 01.dbf। अगर इस जगह ते देखो users 01.dbf, ये थोड़ी फिजिकल लोकेशन है डेटा फाइल दी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਈਲ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਈਲਸ ਨੇ। टेबल स्पेसिस हैं साढ़े को, यही थोड़ा फिजिकल डेटाबेस है। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि इन्हों मैं कोई किसी पेन ड्राइव दे विच कॉपी करके लै जावां ते नहीं लैके जा सकते। अगर तुसीं इन्हों कॉपी भी कर लोगे तो दूसरे सिस्टम ते जाके अगर ओपन करने की कोशिश करोगे नहीं होएगा। आज प्रैक्टिकल मैं तुहानूं दिखावांगा कि अगर तुसीं कॉलेज दे विच या किसी ऑफिस दे विच अपने डेटा ते काम कर रहे हो तो तुसीं चाहते हो उन्होंने मैं पेन ड्राइव ते पा के मैं घर लै जां। जिस तरह स्टूडेंट्स ਨੂੰ आती है प्रॉब्लम, स्कॉट यूजर काम कर रहे हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट कर लिया, लेकिन घर जाके सेम काम उन्होंने करना पैंदा है। टेबल क्रिएट किया, दोबारा इंसर्ट करना पैंदा है क्वेरीज रन करने वास्ते। सो तुहानूं मैं इन्फॉर्मेशन इत्थे दिखावांगा कि उन्होंने किस तरह घर लैके जाना है। पूरा स्कीमा, पूरे टेबल्स, पूरा यूजर तुसीं घर लैके जा सकते हो पेन ड्राइव पा के। उन्होंने किस तरह उत्थे चलाना है, ये अज स्टैप्स ये भी मैं तुहानूं करा दांगा। ठीक है जी। नाउ दिस इज द टेबल स्पेस इंफॉर्मेशन के हुण प्रैक्टिकल ते आने जिहड़ा तुहाडा यूजर है स्कॉट, ਉਹਦੇ ਟੇਬल्स ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ हैं। another yes, डेटा डिक्शनरी टेबल ਅਸੀਂ सर्च करांगे db_users। ये सानू ये दिखाता है कि साडे कोल किहड़े-किहड़े यूजर हैगे हैं। सो आई एम सेलेक्टिंग select username comma default table space from dba_users। सो कुछ सिस्टम के अपने यूजर्स भी होंगे हैं, जरूरी नहीं है साडे क्रिएट किते होण। ईवन स्कॉट भी जिहड़ा हैगा वो भी सिस्टम का अपना बनाया होया जिहदे विच असीं काम करते हैं। ईवन HR इज ऑल्सो देयर। Oracle दी कोई भी अगर तुसीं बुक उठा लो, बेसिक SQL उठा लो या एडमिनिस्ट्रेशन जिहड़ी मैं तुहानूं पढ़ा रहा उठा लो, याद रखना कि वो हमेशा HR यूजर ते काम करता है। जिन्नी सारी बुक्स हैगियां बाकी वो स्कॉट यूजर ते काम करदी है। ठीक है जी। सो साडा जिहड़ा स्कॉट यूजर है, अगर तुसीं इत्थे देखो स्कॉट यूजर यूजर्स नाम की टेबल स्पेस उत्ते काम कर रहा है। इस क्वेरी थोड़ा होर रिफाइन कर लेंगे। वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू स्कॉट। ठीक है जी। तो स्कॉट यूजर जिहड़ा हैगा वो यूजर्स नाम की टेबल स्पेस ते काम कर रहा है। हुण अगर असीं इहदी फिजिकल लोकेशन ते जाके देखिए,
यूजर्स इस जगह ते हैगी है जिहड़ी मैं तुहानूं पहले दिखा चुका। ठीक है जी। हुण थोड़ा जिहा होर इस दे बारे प्रैक्टिकल कर लैंदे आ कि साडे कोल जिहड़ा स्कॉट यूजर है ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ बैकअप ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਕਾਟ ਯੂਜ਼ਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਕਾਟ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਬੈਕਅਪ ਲਾਂਗੇ। ਡੌਸ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਹੈ ਐਕਸਪੋਰਟ, EXP, ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਕਾਟ ਪਾਸਵਰਡ ਟਾਈਗਰ, ਐਂਟਰ। ਨਾਓ ਇਹ ਬਫਰ ਸਾਈਜ਼ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਬਲੈਂਕ। ਫਾਈਲ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ E ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ E ਡਰਾਈਵ Oracle ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ F ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਕੈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ folder with the name backup. So we have E backup folder बिल्कुल empty है। इस जगह ਅਸੀਂ ਦਾਂਗੇ E:\backup/ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਜੀ scott.dmp, ਐਂਟਰ। ਬਾਈ डिफॉल्ट ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਯੂਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੇਬਲਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਯੂਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, सिंपल एंटर कर दो। बाय डिफॉल्ट यूजर पूरा एक्सपोर्ट हो जाएगा। ग्रांट्स यस, एक्सपोर्ट टेबल डेटा यस, कंप्रेस एक्सटेंड्स यस। इस जगह ते एक तरीके नाल एंटर ही करना पैंदा है। ठीक है जी। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਕਅਪ ਫੋਲਡਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ scott.dmp ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ 8 KB। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ scott ਦਾ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਹੁਣ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਕਅਪ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਮਾਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ drop user scott, ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਐਰਰ ਆਏਗਾ। एरर कह रहा है कि स्कॉट एम्प्टी नहीं है। पहले उन्होंने एम्प्टी करो, फिर उन्होंने ड्रॉप करो। तो हुण साडे कोल ते टाइम नहीं है इन्ना कि एक नूं असीं टेबल नूं ड्रॉप करिए फिर उस तो बाद उन्होंने करिए। तो उस जगह ते उन्होंने ये भी लिखा है कास्केड लिखो उत्थे। आई विल से स्कॉट यूजर कास्केड। कास्केड की करेगा, पूरा का पूरा पहले टेबल्स ਨੂੰ ड्रॉप करेगा, फिर उस तो बाद यूजर ड्रॉप कर देगा। ਹੁਣ इस जगह ते अगर तुसी करो कनेक्ट scott पासवर्ड टाइगर, तो साढ़े को स्कॉट यूजर ही नहीं है, स्कॉट रिमूव हो चुका है। सो हुण अगर स्कॉट नूं रिस्टोर करना है, जरा इत्थे ध्यान देना, जो मैं इत्थे चीज़ां कर रहा है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर तुसी एक भी स्टैप इधर उधर करोगे तो रिस्टोर नहीं हो पाएगा। थोड़ा ध्यान देना। नाउ सब तो पहले अगर स्कॉट यूजर नूं रिस्टोर करना है तो स्कॉट यूजर बनाना पेगा। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ कमांड है
create user Scott, identified by, now identified by इस जगह ते पासवर्ड ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। Scott ਦਾ अगर ਤੁਸੀਂ लाइन रखना चाहो पासवर्ड ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ यूजर क्रिएट हो गया, ठीक है जी। नाउ यूजर तो क्रिएट हो गया लेकिन वो लॉग इन नहीं कर सकता, ना ही उत्थे टेबल्स बन सकते हैं क्योंकि उन्होंने अजे असी परमिशन नहीं दी। उन्होंने कुछ परमिशंस ग्रांट करनियां पैणगियां, ठीक है जी। ग्रांट कमांड है, ग्रांट कनेक्ट रिसोर्स टू स्कॉट। नाउ कनेक्ट का मतलब है ਉਹਦੇ ਕੋਲ परमिशन आ जाएगी, वो कनेक्शन बना सकता है। रिसोर्स का मतलब है कि अपने अंदर स्कीमा के अंदर टेबल्स, व्यूज, इंडेक्सेस, जिन्ने भी ऑब्जेक्ट्स हैं स्कीमा ऑब्जेक्ट्स, वो बना सकता है। ਅਸੀਂ उन्हें परमिशन ग्रांट कर रहे हैं एज ए sysdba। एंटर करांगे, ग्रांट सक्सीडेड, कनेक्ट कर लांगे, कनेक्ट स्कॉट लायन। हुण इस जगह पे अगर मैं कनेक्ट लायन कर लेना तो मैं कनेक्ट हो गया। इस जगह पे जाके करदा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, मेरे को कोई टेबल नहीं है, कोई डेटा नहीं है, ठीक है जी। सो हुण असी वो जिहड़ी फाइल जिहनूं बैकअप लिया सीगा उहनूं रिस्टोर करना है, ठीक है। वन ऑफ द कंसैप्ट ऑफ बैकअप एंड रिस्टोर, तुसीं बैकअप ले लिया, उन्होंने वापस उस जगह ते रखना है। सो उहदे वास्ते सानूं की करना पेगा, अगेन ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ IMP। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ EXP ਲਗਾਈ ਸੀ, ਐਕਸਪੋਰਟ। ਨਾਓ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ Scott लायन। याद रखना एक कमांड जी है डॉस से चल रही है। सब तो पहले वो पूछेगा फाइल कितने है, ठीक है जी। फाइल साड़ी पई हुई है जी ई बैकअप के अंदर scott.dmp। सो E:\/ scott.dmp एंटर। उन्हें सानू बफर साइज पूछे, इसनों असीं नहीं चेंज करांगे। अगेन एंटर। कंटेंट्स इग्नोर क्रिएट एरर, नो। इंपोर्ट ग्रांट्स, यस। इंपोर्ट टेबल डेटा, यस। हुण इस जगह पे ध्यान रखना, इंपोर्ट एंटायर एक्सपोर्ट फाइल लिखा है, बाय डिफॉल्ट इट इज नो, लेकिन सानू इत्थे यस करना है। अगर पूरी दी पूरी फाइल इंपोर्ट नहीं करांगे तो की होएगा, टेबल ते आ जाएंगे लेकिन उहदा डेटा नहीं आएगा, सिर्फ ब्लैंक टेबल होंगे। इत्थे यस करना जरूरी। एंटर। साडे कोल विदाउट वार्निंग सारा दा सारा डेटा ये शो कर रहा है कि आ चुका है। हुण असीं स्कीमा दे अंदर जावांगे, स्कॉट लायन। इस जगह पे करांगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। टेबल्स आ चुके हैं। तुसीं अगर देखना चाहो कि किहड़े यूजर के अंदर काम कर रहे हो, कई बार कन्फ्यूजन आ जाती है कि असीं किहड़े यूजर के अंदर लॉग इन आ, साडा यूजर किहड़ा है। स्कॉट टाइगर तो सर ने दिखाता इत्थे, ये भी दिखाता कि इत्थे SQL+ लिख के scott/tiger lion लिखा है तो असीं अंदर आ गए, लेकिन सानू कितना पता लगेगा। देयर इज अ कमांड शो यूजर, तुहानू दिखा देंदा कि तुसीं स्कॉट के अंदर काम कर रहे हो, योर यूजर इज स्कॉट, ठीक है जी। सो टेबल देख सकते हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट कर लो, तुहाडे कोल डेटा आ चुका है। इस तरीके नाल तुसीं इहनूं रिस्टोर कर सकते हो। ज़्यादातर क्लासेस दे विच बच्चे की करते हैं, इन्हां टेबल्स उत्ते मॉडिफाई करते हैं, खराब कर देंगे हैं, तो असीं अपने जिहड़ा लैब इंस्ट्रक्टर हुंदा उहनूं कहंदे हैं उन्हें टेबल कर देता है, तुसीं ऐं करो दोबारा इंस्टॉल करो। वो बेचारा दोबारा विंडोज इंस्टॉल या फिर ओरेकल इंस्टॉल करता है, जिसदे विच एरर आने शुरू हो जाते हैं। हमेशा याद रखना, एक बार अगर ओरेकल इंस्टॉल होगी वो खराब नहीं होती, अगर दोबारा ओरेकल उससे इंस्टॉल करो तो खराब होने के चांसेस होते हैं, तो उस बेचारे को दोबारा विंडोज ही करनी पै जाती है। हालांकि उत्थे ओरेकल ऑलरेडी सेफली चल रही होंदी है, सिर्फ एक डेटाबेस या डेटा खराब होया होंदा है।
ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट थिंग ਜਿਹੜੀ मैं अगली चीज़ ਤੁਹਾਨੂੰ कराना चाहना आफ्टर टेबल स्पेसिस कि अगर ਅਸੀਂ चाहिए कि किसी चीज़ ਨੂੰ रीड ओनली कर ਲਈਏ, जिस तरह मैं टेबल स्पेस का ਤੁਹਾਨੂੰ कंसैप्ट ਦੱਸਿਆ कि टेबल स्पेस जिस जगह ਤੇ यूजर काम कर रहा ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ सिर्फ परमिशन देना चाहते हैं कि वो सिर्फ रीड कर सके, ਉੱਥੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕੁਝ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੇਬਲ ਸਪੇਸ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ alter table space user data read only. Now this is the command. एक कमांड तुसी sys user ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। इस जगह ਤੇ ਜਾ ਕੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ शो कर देना show user, ਅਸੀਂ sys ਦੇ ਅੰਦਰ काम कर रहे हैं, ठीक है जी। Just give me a minute. Describe DBA underscore users. So select I say describe DBA underscore data underscore files. Select table space name from DBA underscore I say table space name from DB underscore data underscore files. So पूरे database के अंदर साढ़े को लेवली table spaces हैं। So if I'll say select, साढ़े को एक command और भी है ऊपर जड़ी मैं तुम दिखाई हुई है। जो स्कॉट है वो टेबल स्पेस डिफॉल्ट टेबल स्पेस होती है यूजर्स, स्कॉट यूजर ते काम कर रहा है। नाउ द कमांड कम्स, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ alter table space user data read only. I can execute this command. ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟੇਬਲ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਗੈਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟੇਬਲ ਸਪੇਸਿਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ select username default table space from db underscore users। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਕॉट यूजर ਹੈ ਉਹ ਰੀਡ ਤੇ ਕਰ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਅਪਡੇਟ, ਨਾ ਡਿਲੀਟ, ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਚੱਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੇਬਲ ਸਪੇਸਿਸ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਹੈ select table space name from db underscore data underscore files। then ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਰ ਕਿਹੜੀ ਟੇਬਲ ਸਪੇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਂਡ ਹੈ select username default table space from dba underscore users where username is equal to scott। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ within quotes ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ Oracle ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਰ ਤੇ ਲੋਅਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰ ਹੀ ਲਿਖਣਾ within single quotes। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਲ ਤੇ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ user does not exist or there is no table, there is no data, ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦੇ ਐਰਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਕੈਪਸ ਲੌਕ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਨੈਕਸਟ ਕਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਟੇਬਲ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੋਡ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਕਮਾਂਡ ਇਜ਼ alter table space user data, ਉੱਥੇ user data ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੇਬਲ ਸਪੇਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ users read only।
टेबल स्पेस ऑल्टर हो गई। हुण यूजर सिर्फ रीड कर सकेगा। प्रैक्टिकल करके देख लेंगे। कनेक्ट स्कॉट टाइगर, हुण एरर आ गया साडे कोल। सानू आदत है स्कॉट टाइगर यूज करन दी, लेकिन असी पासवर्ड हुणी लिखिया होया है लायन। सो आई विल से कनेक्ट स्कॉट लायन। कनेक्ट हो गया। सो नाउ I'll say select star from DEPT department। कुछ डिलीट करने की कोशिश करिए या इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। इंसर्ट इनटू DEPT वैल्यूज। हाँ जी, सब तो पहले है जी साढ़े कोल 50। सो आई से marketing, location is Chandigarh, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਐਰਰ ਆ ਗਿਆ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਐਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਡੇਟਾ ਫਾਈਲ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੋਡ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਡੇਟਾ ਇਜ਼ ਇਨ ਰੀਡ ਓਨਲੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਰਟ ਅਪਡੇਟ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਇਸੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਆਰਡਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕੁਆਇਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੇਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਵਿੱਚ, ਡੇਟਾ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇਨਸਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਂਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਦ sysdba। I can show you the user। ਅਸੀਂ sys ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ। So the command is alter table space users read write। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਰੀਡ ਰਾਈਟ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਮੋਡੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੀਡ ਦੇ ਇਲਾਵਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਨੈਕਟ ਸਕਾਟ। ਹੁਣ ਸਕਾਟ ਲਾਇਨ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਪਾਸਵਰਡ ਟਾਈਗਰ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਕਾਟ ਪਾਸਵਰਡ ਇਜ਼ ਟਾਈਗਰ, ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਮਾਂਡ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਲਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਸਕਾਟ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਬਾय tiger। So now I can say connect Scott Tiger। It is now connected। So I can say select star from DEPT। साड़ी जेडी insert command error देगी सी, insert into department values 50 marketing Chandigarh enter कीता, रो create हो गई। I can say select star from department Chandigarh marketing insert हो गया। चीज जी मेन है जी मैं तुहानू दिखाना चाहता, क्या चाहता है कि हर एक रो का एक सैपरेट एड्रैस है। साडा ओरेकल डेटाबेस या कोई भी डेटाबेस ये किस तरह पहचानता है कि ये पर्टिकुलर रो मैं लैके आनी है। असं लैके चलते हैं ना कि
ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਫੋਰਨ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, 5 ਕਨਸਟੈਂਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। Oracle ਵੀ ਖੁਦ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰੋ ਕਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਐਡਰੈਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦੇ, ਐਡਰੈਸ ਉਹ ਖੁਦ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਰੋ ਦਾ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋ ਆਈਡੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਐਡਰੈਸ ਆਫ ਐਵਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਐਵਰੀ ਰੋ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਬਜੈਕਟ ਨੰਬਰ, ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਬਲੌਕ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਅ ਰੋ ਨੰਬਰ। Oracle ਦਾ ਡੇਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਈਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਬਜੈਕਟ, ਬਲੌਕ ਐਂਡ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। OFBR, ਆਬਜੈਕਟ, ਫਾਈਲ, ਬਲੌਕ ਐਂਡ ਰੋ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3 ਰਿਕਾਰਡਸ, 3 ਕਾਲਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੰਬਰ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇਮ ਐਂਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੰਬਰ, ਦੀ ਨੇਮ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸੇਮ ਸਿਲੈਕਟ ਸਟਾਰ ਫਰੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਾਲਮਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਸੇਮ ਆਏਗਾ ਡੇਟਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਡੋ ਕਾਲਮ ਮੈਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਰੋ ਆਈਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੂਡੋ ਕਾਲਮ। ਸੂਡੋ ਕਾਲਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਰੋ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਰੋ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਯੂਨੀਕ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਵੇਅਰ ਕਲੌਜ਼, ਉਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਰੋ ਆਈਡੀ ਚੱਕਦਾ ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। This is the physical row ID. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਰੇਕ ਰੋ ਆਈਡੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ABCD, ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, select row ID, emp number, e name from emp, ਚੈਨਲ ਦੇਖੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਸੇਮ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋ ਆਈਡੀ ਹੈ, the last of the row ID, ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ABCD and so on। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਏਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Construction of a row, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਲੌਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਲੌਕ। ਉਹ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਲੌਕ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਕੇਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਟਕਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਡੇਟਾ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਲੌਕ ਥੱਲੋਂ ਭਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਛਲਕ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
कुछ इंसर्ट कमांड या अपडेट कमांड चलाते हैं, कोई रिकॉर्ड चेंज करता, कोई हैवी डेटा विच पा दिता, ठीक है, वो रिकॉर्ड तो बाहर ना चला जाए, वो रिकॉर्ड उसी जगह ते अकोमोडेट होए, क्योंकि अगर रिकॉर्ड उस जगह तो हिलेगा सानू इंडेक्सेस मॉडिफाई करने पैणगे, और अगर इंडेक्स मॉडिफाई होएगा सिस्टम के उत्ते ओवरलोड हो जाएगा तो उसके कारण साडा जिहड़ा डेटाबेस है स्लो हो जाएगा। नाउ ये जिहड़े मैं तुहानू कंसैप्ट्स हुण दिखा रहा दस रहा, ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज डेटा वेयरहाउस एंड माइनिंग के कंसैप्ट्स हैं, बहुत हाई लेवल के कंसैप्ट्स हैं। सो तुहानू मैं उहदा क्रक्स एक तरह निचोड़ मैं तुहानू दिखा रहा, ठीक है जी। नाउ क्रिएशन ऑफ अ टेबल, ये सानू सबनू पता है, बहुत ईजी कमांड है, ठीक है। इंप्लॉय दा टेबल असी बना रहे हैं, ये सब चीज़ां कर रहे हैं, जिहड़ा तुसीं पहले वैनसडे नू कर चुके हो आई थिंक। Truncating a table, ठीक है जी। Now there is a little bit difference between truncate table and delete table, ठीक है जी। बस ये थोड़ा जिहा कंसैप्ट मैं तुहानू कराना चाहता, उसके बाद मैं सर नू परमिशन लांगा कि पूछांगा अगर असीं कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये मैनू लग रहा है थोड़ा इंपॉर्टेंट। हेलो जी सर। हाँ जी सर, मैं 2 मिनट लिए सर कुछ आपके दर्शन करा रहे हैं जी सर पिछले पार्ट की आवाज आ रही है। हाँ जी सर मेरी तरफ से। सर एक म्यूट कर दो सर, आवाज क्लियर नहीं है ਤੁਹਾਡੀ। प्रभु वाणी शब्द सुभाखिया। जी सर। कंटिन्यू कर लो सर। राइट सर, राइट सर। सो I'll start with what is the difference between deleting a table and a truncating a table. So ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਕਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 14 rows हैं। Now in this case अगर मैं इत्थे कहना delete from M where employee number, or I say where department number is 10, 3 rows deleted। हुण अगर इस जगह ते मैं करा select star या select e name, department number, employee number ला लेंदे हैं, e name, department number from M। हाँ जी, साढ़े कोल 20 30 ते हैगा लेकिन 10 नहीं है क्योंकि 10 असी डिलीट कर देता है। तो दिस इज अ डिलीट, ठीक है। इवन अगर मैं चाहवा तो डिलीट स्टार फ्रॉम एम कर दोगे, डिलीट फ्रॉम एम कर लोगे। नाउ इन दिस केस नो रो सिलेक्टेड, ठीक है। असी सारा रिकॉर्ड डिलीट कर देता है, लेकिन स्टिल असी इनू रिकवर कर सकते हैं। साडे कोल कमांड है रोल बैक। रोल बैक करांगे, रोल बैक कंप्लीट हो जाएगा। इफ आई से सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे इंक्लूडिंग 10 20 30 सारे डिपार्टमेंट वापस आ गए, ठीक है जी। जब तक तुसी इनू कमिट नहीं करोगे तुसी रोल बैक कर सकते हो। Now this is the only option। लेकिन अगर इन केस अगर मैं इत्थे ट्रंकेट लगाता, ठीक है जी, तो ये सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। टेबल तक रहेगा, टेबल इस जगह पे रहेगा लेकिन डेटा डिलीट हो जाएगा। सो ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जांपल दूसरे तरीके ਨਾਲ क्रिएट करके दिखाऊंगा।
So create table M2 as select star from M. Now this is known as creating a table using a subquery. ਅਸੀਂ select command ਦੇ through table create ਕਰ ਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ as it is ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ M ਹੈਗਾ। describe M2 वही सब कुछ है। Now ਹੁਣ अगर मैं M table ਨੂੰ truncate करा, अब ऐसे truncate table M, select star from M, no row selected। ਹੁਣ इस केस अगर मैं रोल बैक भी करना चाहूं तो रोल बैक नहीं होएगा, रिकॉर्ड्स वापस नहीं आएंगे। ट्रंकेट और डिलीट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਕਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਟਰੰਕੇਟ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੰਕੇਟ ਕਰਤਾ ਟੇਬਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਅਪ ਤੋਂ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੈਕਅਪ ਲੈ ਕੇ M2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੈਕਅਪ ਲਿਆ। ਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਸੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਕਮਾਂਡ, ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਦੂਸਰੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। Insert into M, select star from M2, select count star from M, 14 records आ गए। You can say पुरानी रिकॉर्ड एग्जीक्यूट कर लेंगे जिस साढ़े को रिकॉर्ड्स वापस आ गए। ठीक है जी, yeah, that's 11:09 at the moment। हाँ जी सर, should I continue? If you found interesting, अगर किसी को अच्छा लग रहा है तो मैं आगे continue। सर Yes, okay, सची कोई टाइम लिमिट का कोई कंसेप्ट है? हेलो ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ जी ਕੋਈ- सर ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਓ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਸਰ। जी, अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है, अगर किसी जगह लग गया नहीं ज्यादा हो रहा है, क्योंकि माय डॉक्टरेट इज इन डेटाबेस, तो मेरे दिस इज अ काइंड ऑफ अ टॉपिक व्हिच इज क्लोज टू माय हार्ट। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट अगर ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੈ ਕਿ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰੇਨ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਆਸਕ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਕੰਟੀਨਿਊ? प्रैक्टिकल भी चलेगा, नाल नाल ये सारी चीजें मैं दिखाता रहूंगा। स्टूडेंट्स अनम्यूट करके दसो। सर थोड़े कंसेप्ट होर दस दो। जी कोई सर, गल नहीं, ध्यान नाल सुन रहे ने, कोई गल नहीं। राइट सर। सर एक गल दसो, ਤੁਹਾਡੇ पॉइंट ऑफ व्यू ਨਾਲ ठीक चल रहा है? कोई ज्यादा मैं हाई लेवल पे नहीं चला गया? नहीं नहीं सर, ठीक है ठीक है। जो आम कमांड्स ਦਾ ਸਰ ਬੱਚੇ ਆਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਮਾਂਡਸ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਟੀਬੀਏ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਨਿਊ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी, ठीक है सर, लेवल ठीक है, ਹਾਂਜੀ। बच्चे कैरी कर ਹੁਣ लेंगे। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ओके सर, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਾ। ओके सर। Okay. So we are now going to continue about the indexes. ठीक है जी, we have इस जगह पे let me look at the book. क्योंकि book see if I can chapter
here it is. Okay, now we are starting with managing indexes. Indexes ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਡੇ database 'ਚ ਬਹੁਤ important ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ book ਦਾ index ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ table ਦਾ ਇੱਕ index ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ। Now ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ primary key ਲਗਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ foreign key ਲਗਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ unique, not null, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ constraints ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ describe ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ not null ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ assume ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ that ਇਹ primary key ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, employee number। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ constraint ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ primary key ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ remove ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। primary key ਲਗਾਣੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ create table ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ primary key column ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਦਈਏ comma ਲਗਾ ਕੇ primary key, लेकिन उसको रिमूव कितना करना है। सो मैं तुहानूं हुण डेटा डिक्शनरी का वो दिखावांगा कंसैप्ट जिहदे विच प्राइमरी की या फिर किसी भी कॉन्स्टेंट का की नाम हुंदा है, उहनूं मॉडिफाई कितना किया जा सकता है, ठीक है जी। इंडेक्सिस किन्ने तरह के होंदे हैं और इंडेक्सिस नूं मॉडिफाई किस तरह करना है। मैं तुहानूं कॉन्स्टेंट इस वास्ते करा रहा सब तो पहले क्योंकि प्राइमरी की और यूनीक ये दो कॉन्स्टेंट एवें दे हैगे जिन्हां दे उत्ते इंडेक्सिस ऑटोमैटिकली बन जाते हैं। सो पहले उन्होंने करना जरूरी है, फिर उस तो बाद इंडेक्सिस के उत्ते आ जाएंगे असी। Now there is a data dictionary table named as SSDB के अंदर चलेगा DB_indexes। काफी वड्डा टेबल है, ये सारे कॉलम्स नूं याद करन दी लोड़ नहीं है, ठीक है जी। इस जगह ते तुहानूं दिख जाएगा ओनर, इंडेक्स नेम, इंडेक्स टाइप, टेबल ओनर कौन है, टेबल का नाम की है, सिलेक्ट स्टार इसके उत्ते ना फायर करना, सिर्फ सिलेक्टेड ही यूज करने हैं क्योंकि ये जिहड़ी चीज़ां अगलियां हैगियां इनिट ट्रांस, मैक्स ट्रांस, नेक्स्ट एक्सटेंड, मिनिमम एक्सटेंड, मैक्स एक्सटेंड, ये बहुत हाई लैवल पे हैं। जिहड़ा मैं तुहानूं कोर्स जिस तो करा रहा है OCP का कोर्स है, ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ओरेकल कॉर्पोरेशन का ऑनलाइन एग्जाम होंदा है जिहदे विच मिनिमम 1.5 महीने की पहली स्टडी है, 3 तो 4 पेपर होंदे हैं, ठीक है जी। तकरीबन $125 का एक पेपर है। सो अगर इन्हों पढ़ोगे तो स्टडी मटीरियल भी मिल जाएगा, सब कुछ, तो इस चीज़ को तुसी कर सकते हो। लेकिन जिन्ना हुण मैं करा रहा कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू एंड बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू के नाल सिर्फ उन्ना ही किया जाए। सो ओनर, इंडेक्स नेम, टाइप ये असीं सिलेक्ट करांगे, सिलेक्ट ओनर, इंडेक्स नेम, इंडेक्स टाइप, table name, from DBA_indexes, कॉमा लगाता गलती ना, ज्यादा लंबी कमांड हो गई क्योंकि हुण उस मैनू डेटाबेस के अंदर जिन्ने भी इंडेक्सिस आ दिखा रहा है, इनू मॉडिफाई करांगे वेयर टेबल नेम इज इक्वल टू एम्प। हाँ जी, एम्प के अंदर साडे कोल की हैगा। ना ये थोड़ा जा पढ़न दे विच प्रॉब्लम दे रहा है, सो इनू मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देना। दो तरीके हैं, एक तो कंकैटिनेशन तुहानूं दिखाई देता है। नाउ आई कैन से सेट लाइन साइज
execute this command इस तरह नाल आ जाएगा, पढ़ने दे विच अच्छा लगेगा। Now owner is Scott, index name हैगा pk_m, index type है normal और table दा name है m। लेकिन अगेन सानू इंडेक्स ते पता लग गया, ये भी पता लग गया किहड़े टेबल ते है, लेकिन सानू ये नहीं पता लग गया वो किहड़े कॉलम ते है। There is another data dictionary column table known as db_cons_columns. Now I can say select owner, constraint name, table name, column name, from last wala position is the number, column name, from dba_cons_ where table name is equal to m। कुछ गड़बड़ कर गया मैं। ई एक्स्ट्रा लगा गया, here it is। सो पढ़न दे विच थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मैं होर अगे नहीं सीधा किया जा सकता क्योंकि ये जिहड़ा कॉलम नेम है उसकी कैपेसिटी है 4000। सो 4000 मैं इस जगह पे नहीं लिख सकता। सो मैं तुहानू एक्सप्लेन कर देना। ओनर इज अ स्कॉट, ठीक है जी। कॉन्स्टेंट नेम इज pk_m, टेबल नेम इज इक्वल टू m, कॉलम नेम है एम्प्लॉय नंबर, हियर इट इज, जिन्हों असीं लभ रहे सीगे एम्प्लॉय नंबर। इस जगह पे m टेबल दे उत्ते एम्प्लॉय नंबर दे उत्ते प्राइमरी की लगी हुई है, ठीक है जी। इसी टेबल के उत्ते एक फॉरेन की भी लगी हुई है जिसका नाम है fk_department number। हुण तुहानू याद होएगा M2 का नाम का एक टेबल मैं बनाया सीगा। अगर यही कमांड मैं M2 वास्ते यूज करदा, ब्लैंक आएगा, क्योंकि अगर मैं स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर अगर देखा जाए एम्प नंबर इज देयर, लेकिन उससे कोई भी कॉन्स्ट्रेंट नहीं है। अगर ऐसी चीज नू एम्प के उत्ते लगा के देखा जाए तो इस जगह पे साढ़े कोल कॉन्स्ट्रेंट है। सो अगर मैं ए वाला कॉन्स्ट्रेंट एम्प नंबर दी प्राइमरी की मैं ड्रॉप करना चाहवा, ठीक है, alter table emp drop constraint फॉरेन की ड्रॉप कर दें, प्राइमरी की लेट मी चेक डिपार्टमेंट नंबर, ओके वी कैन ड्रॉप pk emp। हाँ, ये जो मैं स्कॉट डॉट लगा रहा है भी मैं तुहानू एक्सप्लेन कर दिंदा ये की हैगा, ठीक है। पहले इस कमांड को एग्जीक्यूट कर लेंदे हैं। टेबल ऑल्टर्ड, असी ऑल्टर टेबल scott.m ड्रॉप कॉन्स्ट्रेंट असी प्राइमरी की ड्रॉप कर देता है। हुण इस जगह पे ऊपर वाली कमांड अगर असी चेक करिए एम्प टेबल दी, सिलेक्ट ओनर कॉन्स्टेंट नेम टेबल नेम, एंटर करांगे, तुसी ध्यान नाल देखो फॉरेन की ते नजर आ रही है, लेकिन प्राइमरी की जिहड़ी सीगी वो ड्रॉप हो चुकी है जिसका नाम सीगा pk_m। अगर इस जगह पे मैं डिस्क्राइब करा, डिस्क्राइब scott.emp, जिहड़ा इत्थे नॉट नल मिल रहा सीगा वो नहीं हैगा, इस जगह पे जो दिखाई दे रहा है नॉट नल एम्प ने अंदर, ठीक है जी।
So this is the use कि तुसी data dictionary ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ particular constraint ਦਾ name ले आओ, ਉਹਨੂੰ drop कर दो, ठीक है जी। ਹੁਣ primary key ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਇसी ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ alter table, drop constraint, I will say add constraint, constraint name on amp number, yeah, the command is alter table scott.m, add constraint, constraint ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ pk_m, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ primary key ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ constraint ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਨਾਓ ਅਗਰ ਅਸੀਂ describe amp ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ not null ਆ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ primary key ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ with the same name, primary key। Now the concept comes कि मैं इस जगह पे scott.m क्यों कर रहे हैं? As a database administrator, as a sys owner, describe if I say show user, मैं sys हैगा, sys means owner of the database। मैं किसी दे स्कीमा दा कोई भी टेबल चेक कर सकदा, उन्हें मॉडिफाई कर सकदा, ड्रॉप कर सकदा, लेकिन ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ username.tablename। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂ EMPLOYEE ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, select count star from m ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ scott.m, ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। Now as a database administrator ਮੈਨੂੰ यूजर ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਜਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਉਹਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਆਲਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਆਲਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਪਾਸਵਰਡ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਕਐਂਡ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਟਿਊਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਟਿਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਡੇਟਾਬੇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਕਦੀ ਵੀ ਡੇਟਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਬੈਕਅਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਟਾਬੇਸਿਸ ਹੈ 24/7 ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਓ ਕੰਸੈਪਟ ਕਮਸ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਇੰਡੈਕਸਿਸ, ਕਿ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ there is a data dictionary table, yeah, describe db_indexes। ਅਗੇਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੇਬਲ ਕਾਲਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਾਲਮਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੈਕਸ ਨੇਮ, ਇੰਡੈਕਸ ਟਾਈਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੇਬਲ ਨੇਮ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਨਰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ select
Yes. Now, ਅਸੀਂ indexes ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ हैं that we have a unique index and a non-unique index. हमें एक चीज़ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ primary key ਹਮੇਸ਼ਾ unique index ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Just like your roll number. ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ roll number ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਉਹੀ roll number ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ. ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਕ ਇੰਡੈਕਸ. ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਲਗਾਓਗੇ ਉਹਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ that is unique. ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੰਡੈਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਮਾਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ. describe scott.m. सो अगर मैं कोई इंप्लॉय नेम के उत्ते इंडेक्स क्रिएट करना चाहूँ, ठीक है, ऐसे क्रिएट इंडेक्स ऑन Scott, क्रिएट इंडेक्स ऐसे इस जगह पे अगर मैं नेम देना चाहूँ तो नेम भी दे सकता, लेकिन मैं इत्थे विदाउट अपना नाम दिते बगैर कोई यूजर नेम नहीं, मैं सिस्टम में चाहता कि वो खुद ओदा इंडेक्स का नाम रखे. जिस तरह इत्थे इंडेक्स नेम आ रहा PKM, ठीक है, कॉन्स्टेंट का भी सेम नेम है, इंडेक्स का भी सेम नेम है. अगर मैं इत्थे करा क्रिएट इंडेक्स, पहले मैं नेम के थ्रू क्रिएट करके दिखा देना, फिर आफ्टरवर्ड्स बिना नाम दे भी बन जाएगा. ऐसे क्रिएट इंडेक्स से IDX name on M name. So Scott. गलती कर रहा है ई नेम. ठीक है जी. क्रिएट इंडेक्स IDX underscore name. IDX means index on Scott.emp within brackets ई नेम. ठीक है जी. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡੇਟਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ M ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਇੰਡੈਕਸ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, लेकिन ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਓਨਰ ਕੌਣ ਹੈ. कि बाय डिफॉल्ट पहले वाला जो इंडेक्स है वो स्कॉट ने बनाया है, लेकिन इस जगह पे मैं सिस यूजर च बैठ के इंडेक्स तैयार किया है, तो इस जगह का ओनर आ जाता है सिस. इंडेक्स टाइप इज नॉर्मल, टेबल नेम M, लेकिन इत्थे देखो प्राइमरी की इज यूनिक इंडेक्स, लेकिन मैं जो इंडेक्स बनाया दैट्स अ नॉन यूनिक इंडेक्स. ਉਹਦਾ नेम IDX नेम मैं डिफाइन किया है ना. कोई और कॉलम ले लेंगे जिस तरह असी ले लेंगे जी सैलरी दे उत्ते, द सेम कमांड सैलरी, लेकिन इस जगह पे मैं इंडेक्स का नाम नहीं देता. मैं चाहता कि सिस्टम खुद ओदा नाम डिफाइन कर दे. ओके, नहीं ये कमांड नहीं चलान देगा. इन दैट केस अगर मैं इस जगह पे टेबल क्रिएशन के टाइम पे अगर कोई मैं इंडेक्स बनाना चाहवां या फिर उस जगह पे कोई करना चाह तो वो अपने आप ले लेगा. इस जगह पे मैंने नाम देना पड़ेगा. दिस इज क्वाइट मैंडेटरी फॉर दैट. ठीक है जी. ओके, यस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. आई थिंक एक लेक्चर वास्ते इन्ना काफ़ी है. बच्चों का करांदा रवां ते उपरों निकल जाए सारियां दे. सो start some question answer round. You can ask me any questions, any revision you want to take. सर बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ जी. हाँ जी, स्टूडेंट्स किसी का कोई क्वेश्चन हैगा? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੇਰਾ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਚਾਹੋ ਸਰ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. कोई भी टॉपिक अगर रिवाइज करना है या फिर तुसी कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो रिगार्डिंग डेटाबेसेस, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈਟ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੋਟ ਕਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਸਰ. या सर, शुड आई राइट इट ऑन नोटपैड ओवर हियर? ये चैट ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦਾ. ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਨੋਟਪੈਡ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ. ओके,
हाँ जी। Sir, can I give okay font ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। हाँ जी सर, दिखाई दे रहा है? यस सर, यस। ओके सर। SHP